Okay. Yes, yesterday we are going on the topic disability etiquettes. I have written some points here. In your book, whatever you have taken publication, just like you can say Saraswati publication, in that topic, points are not given. Only 1, 2, 3, according to serial number, it's written about the disability etiquettes. So I have written here 5 points mainly. First one is the disability etiquette here means people with disability means every person deserves equal opportunities and equal treatments irrespective of their sex, religion, age, race, or you can say ability. So disability etiquettes are the basic requirement, no need to write, only listen. Disability etiquettes are the basic etiquettes for the working with people having different kinds of disabilities. Means disabilities means disabled person are different kinds. It may be by hand, by leg, by ear, or by eyes. These are the part of the disabled persons from where we can't see, we can't hear, we can't walk in a proper way, we can't see as a normal person. So this type of disability is known as you can say disability etiquettes. इस पर disability etiquette से related है the equipments are instruments which are used for the disabled used by the disabled person. That is the disability etiquettes. Here I have taken disability etiquettes. First one is wheelchair etiquettes. What type of disabled persons who are using wheelchair etiquettes? कौन से ऐसे disabled person हैं जो wheelchair etiquettes का use करते हैं? Means while talking with such a person means किस तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए जो व्हील चेयर एटिक्वेट से रिलेटेड अगर डिसेबल पर्सन कोई है उससे अगर हम बात करते हैं इफ वी आर टॉकिंग विद दैट टाइप ऑफ पर्सन व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद दैट टाइप ऑफ पर्सन्स कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए सो मेनली इन फ्रंट ऑफ हिम और हर एंड मेंटेन आई कांटेक्ट जब हम उससे बात करते रहते हैं तो आई कांटेक्ट होना चाहिए यानी हम आंख से आंख मिलाकर बात करें ना कि उसके इम्पेयरमेंट्स को हम वॉच करें अगर हम उसके इम्पेयरमेंट को वॉच करते हैं तो ऐसे डिसेबल पर्सन्स के अंदर का एक हीन भावना डेवलप होती है दे इग्नोर योर हिमसेल्फ बाय अदर पर्सन वो अपने आप को हीन महसूस करेगा अपने अंदर यह सोचेगा कि हमको ये मेरी जो डिसेबिलिटी है उसके ऊपर ध्यान दे रहा है ना कि मेरे ऊपर ध्यान दे रहा है इस तरह की उसके अंदर मनोभावना होती है इसलिए हम लोग क्या करते हैं जब भी हम ऐसे पर्सन से बात करें आई कांटेक्ट होना चाहिए आंखों में आंखें मिलाकर हमको बात करनी चाहिए दैट इज द फर्स्ट you can say etiquettes for the disabled person with the related of you can say impairments of legs. Secondly, it is an inappropriate to automatically assist the individuals without her permission. So if your assistant is rejected, respect their decision. Third point, you can say wheelchair etiquettes में if the conversation with a wheelchair user lasts longer, either kneel down or sit down at a nearby place to give individual a more comfortable viewing angle. अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग व्हील चेयर पर जो डिसेबल पर्सन्स बैठे रहते हैं वी आर नॉट सीइंग दैट टाइप ऑफ पर्सन आर नॉट सीइंग टू अस इन अ प्रॉपर वे बिकॉज he is sitting below so his eye contact will be up here then we can see if you want to check that type of person we sit on place अपने नीचे फ्रंट पर उसके सामने आप झुक सकते हैं
या उसके सामने आप बैठकर उससे हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लो बहुत से ऐसे पर्सन्स होते हैं जो नील डाउन होकर चलते हैं, यानी घुटनों पर चलते हैं। ऐसे लोगों से अगर आप खड़े होकर बात करेंगे तो वो प्रॉपर वे में बात नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों से अगर हम बैठकर बात करें, whenever we sit in the front of that type of person and talk with that the type of person, they feel you can say better. Next etiquette is most important. Respect the wheelchair. Always believe that wheelchair too can be means to fully engage in physical activity throughout life. इसलिए देखिए आजकल आज की डेट में हम लोग पैरा ओलंपिक टूर्नामेंट्स कराते हैं। पैरालंपिक्स टूर्नामेंट्स जो कराने का मेन मकसद यही है कि every persons deserve equal treatment and equal opportunities. That is why we organize Paralympic tournaments for that type of disabled persons. Next, I have written visual disability etiquettes. Visual disability etiquettes, ऐसे persons who are not seeing by eyes, means they have problem to see other persons or other things, or you can say this different type of problems occurs in front of that type of person who are visually unable to see anything. So people with visual disability are not able to see gesture. We need to say everything one words. ऐसे पर्सन जिनको दिखाई नहीं देता है उनको हम लोग को वर्ड्स में उनसे बात करनी पड़ती है, शब्दों में बोलते हैं तब वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अदरवाइज उनके सामने आप कुछ भी एक्टिविटी फॉलो करते रहिए, उनको जब दिखाई ही नहीं देगा तो क्या समझेंगे। उसके लिए हम लोग को वर्ड्स का यूज करना पड़ता है, लैंग्वेज यूज करेंगे तब जाकर उनके समझ में आएगी बातें। सो secondly, always introduce yourself and the people accompanying you before starting a conversation with such peoples. Next, while walking with a person having visual disability, offer your arm to them for holding. As a persons who are visually disabled, if you are walking with them, first of all you offer your hands to walk with them. उसके साथ चलने के लिए अपने हैंड्स को ऑफर करना चाहिए कि वो अपना आपका हाथ पकड़कर आपके सहारे चल सके। सो गाइड द पर्सन अबाउट द कर्व्स, ditches, pathholes, step along the way. मीन्स जब हाथ पकड़कर चलते हैं उसको उस विजुअल डिसेबल पर्सन के साथ, तो उसको स्टेप स्टेप पर बताते हुए चलना चाहिए कि कहाँ पैथोल्स है, कहाँ पर आपके डीचेस है, कहाँ पर कर्व है, ये सभी कंडीशंस बताना चाहिए। और ऐसे लोगों की जो सेंसिटिव एक्टिविटीज है वो काफ़ी फास्ट होती है, वो एक एक चीज़ को वॉच करते चलते हैं। वॉच करने का मतलब है कि हम जितने देर में जिस जगह पर पहुंचते हैं वो टाइम नोट कर लेते हैं कि हम इतने समय पर इतने स्टेप पर, मीन्स हाउ मेनी स्टेप वी वॉक अप टू दैट टास्क, उस टास्क तक पहुंचने के लिए हमने कितने स्टेप लिए हैं उसको काउंट करते हुए चलता है। इतने सेंसिटिव वो होते हैं जो विजुअल डिसेबल पर्सन होते हैं, मीन्स दे हैव कैपेसिटी। कहा जाता है ना कि जब कोई अंग भगवान छीन लेते हैं, यू कैन से बाय इवेंट और बाय एक्सीडेंट, तो कोई ना कोई शक्ति हमारे अंदर डेवलप करते हैं और उस शक्ति को हम डेवलप सेल्फ करते हैं और उसके ही सहारे हम लोग अपने आप को उस एक्टिविटीज में फॉलो करने का प्रयास करते हैं। सो इन द कंडीशन ऑफ विजुअल डिसेबिलिटी, दैट इज हेयर आल्सो, व्हेनेवर ऑलवेज इन्फॉर्म देम बिफोर एंडिंग ए कन्वर्सेशन और लिविंग द रूम। जब भी आप रूम छोड़ते हो तो उस व्यक्ति को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। एंड डू नॉट वॉक अवे विदाउट इन्फॉर्मिंग, बिना इन्फॉर्म किए हुए आपको उस रूम से नहीं जाना चाहिए। अगर उसके साथ बैठे हुए हैं तो आप जब जा रहे हो तो आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं बाहर जा रहा हूँ। कभी कभी दिस टाइप ऑफ पर्सन जो विजुअल डिसेबल पर्सन होते हैं वो आपके फुट स्टेप से भी आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
फुट स्टेप से भी आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि आप अपने पैरों को जिस तरह से वॉक करते हैं, आपके साउंड को वो हियर करते हैं और उस फुट स्टेप से आपको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि आप बाय नेम जान जाते हैं कि यही व्यक्ति है, हमारे घर का वो मेंबर है। इस तरह की भी उनके अंदर सेंसिटिव यू कैन से जो ऑर्गन्स होते हैं उनके काफी वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज हियरिंग डिसेबिलिटी एटिकेट्स। Hearing disability etiquette is totally related with the ears, who the person who are not hear in a proper way. So hearing disability etiquettes for hearing disability etiquettes while communicating with a person having hearing disabilities, make sure there is no background noise. जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है और उससे अगर आप बात करते रहते हैं तो यह आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति से आप बात करते हो उसके आसपास कोई नॉइज ना हो, आवाज ना हो, साउंड ना हो, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो। बहुत लोगों को कम सुनाई देता है, हियरिंग डिसेबिलिटी ही है, जिसको कम सुनाई देता है तो उसको तेज बोलना पड़ता है। जैसे जो ओल्ड एज के पीपल्स हैं हमारे घरों में, आप लोग देखते होंगे जो आपके एंसेस्टर होंगे, जो पुराने मतलब बुजुर्ग होंगे, दादी हैं या दादाजी हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, उनको तेज आवाज मतलब साउंड जो होगा काफी साउंडफुल होगा, जो हम लोग बोलेंगे तेज बोलेंगे, दादी पानी लाएं, इस तरह का जब उसके सामने उनके सामने अगर हम तेज आवाज में बोलते हैं तब सुनाई देता है। दैट इज ऑल्सो ए हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये हियरिंग डिसेबिलिटीज भी होती है। दूसरे पर्सन भी बहुत से होते हैं जो पावर प्लांट्स में वर्क करते हैं जहाँ पर साउंड हमेशा होते रहते हैं। ऐसे लोग जब रिटायर्ड होते हैं तो उनके कान लगभग बहरे हो जाते हैं। ये समझ लो कि यानी उनको सुनाई देना कम हो जाता है, सुनाई नहीं देता है, बहुत रेयर। कम सुनाई देने की वजह से उनको तेज बोलना पड़ता है। वो व्यक्ति भी तेज बोलता है, इसलिए बोलता है कि वो समझता है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है, जबकि उसको सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो भी तेज बोल रहा है कि उसको वो भी हमारी बात सुने। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होती है जो हियरिंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। सो हियरिंग डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल you communicate with that type of person. Whenever you communicate that type of persons who have hearing disability, make sure there is no background noise. Secondly, wave your hands or tap on their shoulder to grab their attention. और जब ऐसे व्यक्ति से whenever you talk with that type of persons, who wave your hands or tap on their shoulder to grab their attentions, या उनके कंधों पर हाथ रखकर आप अपने तरफ उसको आकर्षित करने का प्रयास करें कि वो आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन सके। सो that is also disability etiquettes about the hearing. Third one is you do not shout at a person having hearing disabilities. Means whenever you talking with that type of person, don't shout, चिल्लाइए ना, बल्कि आप wave your hands or with action try to understood with that their actions. एक्शन से आप उसको समझाने का प्रयास करें जिससे कि वो समझ सके। चिल्लाने से अगर आप साउंड करते हैं, साउंड करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो समझ जाएगा। इसलिए आप अपने हैंड्स का, अपने एक्शन का यूज करें जिसकी वजह से उसको समझ में आए। नेक्स्ट यू कैन से while using the help of an interpreter to communicate with such a person. इसलिए देखा कीजिए न्यूज आता है एक आपके नेशनल पर, वो हियरिंग प्रॉब्लम्स ही होता है, वो हियरिंग प्रॉब्लम्स होता है। इसलिए क्या करते हैं अक्सर जो ओठ उनके जो लिप्स हैं और फिंगर्स हैं उसी से केवल वो बोलती रहती है और उससे ही आपको विथ एक्शन वो पूरे न्यूज को आपके सामने रख देती है, जिसको हम लोग सुनते हैं, देखते हैं विद देयर एक्शंस एंड बाय यू कैन से मूविंग और लिप्स। अपने ओठों को हिलाकर ही सामने वाले को हम अपने जो भी बातें हैं, टॉक्स हैं और रख सकते हैं। सो टॉक स्लोली एंड क्लियरली। इसलिए
ऐसे पर्सन्स दोज हु हैव हियरिंग प्रॉब्लम्स टॉक स्लोली। जब आप स्लोली बात करेंगे तो जब whenever you are moving your lips, तो आपके लिप्स को वो ध्यान पूर्वक देखता है और आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू से बाय योर लिप्स, दे केयर अबाउट योर लिप्स एंड दे अंडरस्टूड देयर एक्शन, उस एक्शन को समझने का वो प्रयास करता है। और आप जो कहना चाहते हैं जब आप बोलते हैं तो समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ बाय मूविंग योर लिप्स। जब हम ओठों को हिलाते हैं और बोलते हैं तो उससे ही वो समझ जाता है। दैट इज द एटिक्वेट्स अबाउट द डिसेबिलिटीज। सो गो स्लोली और यू कैन से talk slowly, clearly, so that they are able to read your lip movements. People with hearing disability often rely on lip movement or gesture or facial expression for understanding conversations. Use sign language only if both of you are familiar with it. Sign language means with action by the using of hand, fingers and lips movements. Next point I have written here, learning disability etiquettes. Learning disability etiquettes, the person who have not ability to learn any activities, means they have problem in learning conditions. So always speak slowly and politely with a person having learning disability. बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको याद करने में प्रॉब्लम होती है किसी टॉपिक को, या कोई बातें वो सुनते हैं तो अगर हम फास्ट बोलते हैं तो ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाते हैं। ऐसे बच्चों के साथ जिनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है, उनके सामने हम क्या है, स्लोली बोलें, यानी अपने वर्ड्स को इजीली वे में उनके सामने रखें जिससे कि वो हमारी बातों को समझ सकें। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्लो माइंडेड होते हैं, काफ़ी देर बाद उनको वो टॉपिक समझ में आती है। ऐसी एक भी कंडीशंस होती है और बहुत बच्चे तुरंत ही उस टॉपिक को ग्रैस्प कर लेते हैं, इसलिए उनको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो स्लो माइंडेड होते हैं, जो लर्निंग डिसेबिलिटी जिनके अंदर पाई जाती है, ऐसे बच्चों को बार बार समझाने पड़ते हैं, तब जाकर उनको वो टॉपिक समझ में आता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज एजुकेट्स। So do not use complex words or sentences if you want to etiquettes about for the learning disabled persons. आसान शब्दों का, आसान सेंटेंस का, आसान वाक्यों का हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रेजेस का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि वो बच्चा समझ जाए या वह व्यक्ति समझ जाए जिसके अंदर यह इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। Thirdly, listen carefully to what they want to convey. First of all, you listen what they want to say or they want to question from you. First of all, you listen what they want to convey and try to understand their point of view. और उसके point of view को भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि वह क्या कहना चाहता है एक्चुअल में। तब उसके लिए आपको उसी तरह की एक्टिविटी फॉर्मेशन में लानी चाहिए और उसको समझाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट फॉर यूजफुल, यूज कलरफुल फिगर्स, illustrations and other such resources to enhance the teaching learning process. इसलिए देखिए आजकल स्मार्ट क्लासेस चलते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स को प्रॉपर वे में बनाए रखने के लिए आज की डेट में स्मार्ट क्लासेस चलाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के थ्रू उनको स्टडी कराई जाती है, पढ़ाया जाता है, जिससे कि वो बच्चा आसानी से ग्रैस्प कर ले किसी चीज़ को। और पहले ऐसा नहीं था, हम लोग क्या ABCD लिख दिए, हम लोग पहचान लिए कि भाई ABCD इस तरह लिखा जाता है। लेकिन आज की डेट में क्या है, A for apple, that means we are showing the colorful figure about the apple, or you can say original apple बच्चों के सामने हम लोग दिखाते हैं,
तब आज की डेट में उनको समझ में आता है कि हाँ एप्पल मीन्स ए फॉर एप्पल, दैट इज द कंडीशन अप्लाइड फॉर द लर्निंग डिसेबल पर्सन यू कैन से स्टूडेंट्स। इस तरह की एक्टिविटीज फॉलो की जाती है और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए भी यह एक्टिविटी की जाती है। सो वी आर यूजिंग कलरफुल फिगर्स, illustrations and other such resources to enhance the teaching learning process। यानी हम क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी हम लोग फॉलो करते हैं। दैट इज द एटिक्वेट्स अबाउट द लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी को फॉरवर्ड अवे करने के लिए हम लोग इस तरह की एक्टिविटी फॉलो करते हैं। एंड लास्ट वन इज द स्पीच डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स। स्पीच disability etiquettes general, you know, the person who have disabled to orate or give some impression in the front of the peoples, ऐसे persons जो अपने व्यू पॉइंट ऑफ व्यूज को, अपने इम्प्रेशंस को, अपने लर्निंग टास्क को लोगों के सामने अच्छे से नहीं रख पाते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं स्पीच डिसेबल पर्सन्स में उनको काउंट किया जाता है। अक्सर ऐसा होता है, इसलिए आप लोग का देखिए स्पीचेस होते हैं या यू कैन से जब आपके असेंबली होती है तो उसमें आपको न्यूज़ पढ़ने के लिए हम लोग बच्चों को फ्रंट में बुलाते हैं। दैट इज द डन बाय एक्टिविटीज बाय अस और द so for speech disability etiquettes we very attentive and patient while conversing with person having speech impairment. Do not rush her. Secondly, always allow them to complete the sentence themselves instead of completing it for them. Means अक्सर होता है बोलने के वक्त हम लोग भूल जाते हैं, तो let them complete that topic, उसका टॉपिक को, उस सेंटेंस को कंप्लीट करने देना चाहिए। कीप देम चांस फॉर स्पीच। सो convey the points you do not understand and allow them to respond freely. Do not pretend to understand if you don't. अगर आपको समझ में नहीं आया तो बार बार उसको आप उसके सामने ना रखें उस बात को। And you can say always encourage such people rather than correcting them. अगर गलत या सही भी अगर वो बोलता है सामने व्यक्ति तो उसको हम लोग को क्या करना चाहिए? इनकरेज करना चाहिए। मीन्स इफ वी आर इनकरेजिंग दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट और दैट टाइप ऑफ पीपल, दे हैव कैपेसिटी टू स्पीच in front of the people's proper way, in a proper way. But if we are interrupting every time or every in words, every sentence, then that type of persons may be unable to speak in the front of the persons or peoples. ये इस तरह की क्वालिटी उनके अंदर डेवलप हो जाती है और फिर वो स्टेज पर जाना छोड़ देगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए कभी भी स्पीच देने के वक्त जब बच्चे आते हैं तो हम सभी बच्चों को यह चाहिए कि उस समय नॉइज ना करें, आवाज़ ना करें। उस बच्चे को अपने जो भी पॉइंट्स रखने हैं उनको फ्रीली रखने देना चाहिए, राइट और रॉन्ग। फर्स्ट टाइम वो अगर रॉन्ग भी रखता है तो सेकंड टाइम में वो करेक्ट हो सकता है। बट इफ यू आर नॉट इनकरेजिंग दैट पर्सन, इफ यू आर सेइंग नॉट करेक्टली, अगर नहीं इनकरेज करते हैं तो कल को फिर वो डिस्करेज होकर वो फिर स्टेज पर नहीं जाएगा या स्पीच देने के लिए वो एबल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग के अंदर ये एक्टिविटीज भी कराई जाती है बच्चों में कि बच्चों के अंदर से हेजिटेशन जो प्रॉब्लम्स है वो ना हो, दूसरों के सामने भी अपनी बातों को, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके, रख सके, ऐसी कैपेबिलिटी उनके अंदर डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। दैट इज द स्पीच डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स फॉलोड इन द स्कूल्स।
So all these are the disability etiquettes I have written in points. So all of you know that in this year previous year, अभी पिछले इस सत्र में आपके सेशन में ये क्वेश्चन आपका आया था डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स में। डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स में बहुत से बच्चों ने केवल पॉइंट्स में केवल ऐसे ही 1 2 3 पॉइंट्स लिखकर उसमें डिफरेंट टाइप के वर्ड्स उसमें यूज करके उन्होंने छोड़ दिया था और पूरा 1 पेज का उन्होंने लिख दिया था। बट इफ यू आर नॉट राइटिंग इन स्टेप्स मीन्स इन पॉइंट्स, देन you get less marks in the examination. So write in points whatever I have written here about the disability etiquettes. जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स में व्हील चेयर एटिक्वेट्स लिखा है, देन इट डिस्क्राइब इट, इसको आप डिस्क्राइब करिए। हाउ व्हील चेयर एटिक्वेट्स इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे उस डिसेबिलिटी को हम एटिक्वेट्स मतलब लाभ पहुंचा सकते हैं, कैसे उसको बेनिफिट हम पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करिए। देन आंसर इज कंप्लीटेड, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। अदरवाइज यू गेट ओनली हाफ मार्क्स, मीन्स बाय द बोर्ड प्रोसीजर इज एयर हाफ मार्क्स ऑन 1 पॉइंट्स। एक पॉइंट पर केवल हमको आधे नंबर ही देने का राइट है। इफ दिस क्वेश्चन इज 5 मार्क्स, then I will give you only half marks on 1 point. If you are written in theoretical only theory and not given points, then only you get half marks. It means out of 5 you get only 2.5 marks. केवल आपको 5 नंबर में 2.5 नंबर भी मिलने के संभावनाएं होंगी। 2.5 से 3 हो सकता है, उससे एक्सेस नहीं हो सकता। बट इफ यू आर रिटन इन पॉइंट्स and then you describe all these points, then you get 5 marks, तब आपको जाकर 5 मार्क्स मिल सकते हैं। अदरवाइज यू गेट 2.5 मार्क्स। और इफ यू आर ओनली रिटन गिवन पॉइंट्स ओनली, देन यू गेट हाफ मार्क्स, पॉइंट पर आधे नंबर मिलेंगे। और अगर पॉइंट को आपने डिस्क्राइब कर दिया है तो ये आधे की जगह पर 1 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ द मार्किंग, मीन्स कैसे आपको नंबर अधिक से अधिक मिल सकते हैं, ये प्रोसीजर है इसका। कल बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, ठीक है, दे आर आस्किंग अबाउट द बुक्स और वट एवर एवरी बुक वट एवर यू हैव बुक्स, जो भी आपके पास बुक है आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रॉपर एक कोई बुक है, लेकिन एक प्रॉपर बुक हमने बता दिया था कि सरस्वती पब्लिकेशन में बुक्स में मोस्ट प्रोबेबली पॉइंट्स जो है डिस्क्रिप्शन जो है अच्छे हैं, इसलिए मैं उसको यूज़ करता हूं। जनरल आप उसको लेकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मार्किंग स्कीम का वही है कि आपको मार्क्स कैसे अच्छे मिलेंगे वो ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया कि ऑन 1 पॉइंट्स you get half marks. If you are described that point, then you get 1 marks. एक पॉइंट पर आपको 1 नंबर तभी मिलेंगे जब उसके बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे। अदरवाइज यू गेट, if you are written 5 points only, then you get 2.5 marks. That if paper is lengthy, then write only points, you get 2.5 marks. अगर ज़्यादा पेपर लेंदी है तो आप पूरे 5 पॉइंट लिख देंगे, तभी भी आपको 2.5 मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे। सो दैट इज अ डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, स्ट्रैटेजीज। Strategies to make physical activities accessible for children and special needs. That is your next points for physical education and sports for disabled Divyang special needs.
strategies to make physical activities accessible for children with special needs. Means Divyang. Strategies means policies, or you can say tactics, whatever used for the physical activities for special need type students, or you can say children. Any special needs totally related with means disabled type of students, disabled type of students के लिए किस तरह की strategies अपनाई जाए जिससे उनको फिजिकल एक्टिविटीज आसानी से कराया जाए, यानी फिजिकल एक्टिविटी कराने के लिए कौन सी पॉलिसीज हमको अपनानी चाहिए. दैट इज द मेन पॉइंट हियर. सो सर्टेन स्ट्रेटेजीज हैव बीन डेवलप्ड टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज accessible for children with special needs. These strategies are adapted according to their interest, according to their interest and ability of such children. बच्चे का इंटरेस्ट भी होना चाहिए और उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वह बच्चा उस स्ट्रेटेजीज को, उस एक्टिविटीज को अडॉप्ट कर सके. So these programs are known as adaptive physical education. ऐसे programs को हम लोग adaptive physical education में consider करते हैं. So the adaptive objective of such programs is to ensure the active participation of children with special needs in physical activities and sports. So some strategies here. Here are some strategies applied for the physical activities for children of special needs. Generally, consideration of individual needs. Special needs. Here first strategies, consideration of individual needs. Individual needs. Individual needs means the needs and capabilities of every child must be assessed to ensure that the adaptive program meets their physical, mental, social and emotional needs. यानी उनके इन सभी एक्टिविटीज के आधार पर क्या है हमको कंसीडर करने चाहिए, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हमको फिजिकल एक्टिविटीज फॉर्मेशन करने चाहिए. That is the main strategy of the physical activity for special need type of students. Secondly, modification of equipments. Modification of equipment. You know very well, if a normal students or normal children playing with any equipment that is not used for that दिव्यांग type of students. एक नॉर्मल स्टूडेंट या नॉर्मल बच्चा जिस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करता है वो ना दिव्यांग से रिलेटेड या स्पेशल नीड से रिलेटेड चिल्ड्रेन उस इक्विपमेंट का इस्तेमाल वो नहीं कर पाएगा. इसलिए क्या हमको करने चाहिए, मॉडिफिकेशन करने चाहिए, यानी हम उस इक्विपमेंट में चेंजेस लाए, उसके अकॉर्डिंग हम उस इक्विपमेंट को तैयार करें, प्रिपेयर करें और उसको अवेलेबल कराएं. दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स.
The size, shape, weight, and color of the equipment used can be altered to suit the needs of the children. For example, you can say use of bright colored balls for children with visual impairment. जो विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड चिल्ड्रन होते हैं जिनको कम दिखाई देता है, ऐसे लोगों को ब्राइट कलर्ड बॉल्स का हम लोग यूज करते हैं. उसी तरह से इक्विपमेंट में भी है, हम लोग डिफरेंट टाइप के जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उसको कलरफुल हम लोग बनाते हैं तो उनको आसानी से दिखाई देता है. जैसे देखिए रोड पर, सपोज दैट इफ यू आर नॉर्मल चिल्ड्रन और नॉर्मल आई विजुअलिटी, हम लोग रोड पर जब चलते हैं तो ब्रेकर आते हैं, और अगर उस पर ब्लैक एंड व्हाइट का अगर कलर नहीं होता है तो वी कांट आइडेंटिफाई वेदर ब्रेकर इज देयर और नॉट. हम लोग खुद भी एक नॉर्मल आई विजुअलिटी होने के बाद भी हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और अचानक हम ब्रेक मारते हैं वहां एकदम पास में पहुंचने के बाद, और फिर हम उसको क्रॉस करते हैं. उसी तरह से जो विजुअल डिसेबिलिटी के अंतर प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उनके लिए हम लोग उसी तरह का इक्विपमेंट हम लोग मॉडिफाइड करते हैं, उसी तरह के इक्विपमेंट्स को मॉडिफाई करके उनके सामने रखा जाता है. नेक्स्ट है चेंज ऑफ इन्वायरमेंट. Change of environment means the environment should also be modified according to the needs of the children with special needs. For example, you can say the playing area can be reduced or marked with tape when the movement capability of children are limited. Besides, for creating good atmosphere, facilities such as music, bright lights may be made अवेलेबल. इस तरह के हम लोग को व्यवस्थाएं उसमें करनी चाहिए, एनवायरनमेंट में बदलाव लाना चाहिए जिससे कि वो दे टेक इंटरेस्ट अबाउट दैट एक्टिविटीज. नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन इन रूल्स. मॉडिफिकेशन in rules. Modification in rules means every rules and regulation not regulated for special need students like a normal students. अगर नॉर्मल टाइप के स्टूडेंट्स जिसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग अपनाते हैं, यूज करते हैं, वो रूल रेगुलेशन वो स्पेशल नीड से रिलेटेड स्टूडेंट्स पर अप्लाई नहीं हो सकता है. सो वी मॉडिफाई द रूल्स एंड रेगुलेशन आल्सो फॉर दैट टाइप ऑफ children who are related with the special needs. So in order to encourage fair competition, the rules should always be easy to understand. Gradually, with the improvement in skills of the participants, the rules should be modified. While framing the rules of a game, the past achievement of the children with special needs should also be considered. Okay, next day. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.